Okay, so I am asking some question for you. You are able to give me answer? Tell me yes or no. Harshika, are you there? Yes. Chalo, I am asking some question. Write full form of EVM. Tell me full form of EVM. Electron Speak electronic loudly. voting machine. Speak loudly. Hmm. Electronic voting machine. Electronic. E for electronic. V for huh? Voting. Yes, or M for Voting. M. In. Machine. Electronic. Machine. Yes, you are right. Electronic voting machine. Which political parties are known as national parties? Batao, which political parties are known as national party? Jay, good morning. Give me answer. Name, ma'am. Good morning. Tell me the answer. Which political party are known as national party? National Party. मैं आंसर Yes. यस नीचे डोल क्या बेटा? क्या? बेटा स्पीक लाउडली, मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली. मैम आपका क्वेश्चन क्या था? Which are the national parties? Sorry, question था which political parties are known as national party? रीजनल पार्टी. बताओ. देखो, those political parties which has presence and contest election all over the country in more than 4 states. मतलब जो more than 4 states से ज्यादा इलेक्शन में पार्ट ले रही है कोई एक पार्टी, they are known as national party. ओके, जैसे होता है ना जो एक मतलब जो 4 स्टेट से ज्यादा में जो पार्टी भाग लेती है, मतलब 4 स्टेट से ज्यादा, समझ रहे हो इस बात का मतलब? more than 4 states. Getting my point what I am saying? यस मैम. है ना, मतलब कोई एक पार्टी जो 4 स्टेट से ज्यादा में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है ना, वो कहलाएगी हमारी पॉलिटिकल नेशनल पार्टी. ठीक है. व्हाट इज अ रीजनल पार्टी? मैम जो स्टेट वाइज होती है. रीजनल पार्टी किसे बोलते हैं बेटा? स्टेट वाइज होती है. चलो ये तो मुझे समझ में आ गया. जो वो पर्टिकुलर रीजन में ही होती है. Yes, very good. A regional party is also known as one state party as these have a presence and contest election in one state. जो one state में ही हो, that's called regional party. और जो more than 4 state में हो, that's called national party. Okay? Which are the two wheels of chariot of democracy? ये मैंने आपको लास्ट में ये लाइन समझाई थी कल. Which are the two wheels of chariot of democracy? रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज. Yes, the ruling party and the opposition party are the two wheel of chariot of democracy. Which functions are performed by the election commission in India?
Which functions are performed by the Election Commission in India? Tell me. Are you present? Harshika, Ivan, Nidhi, Jay. मैम वो इलेक्टोरल रूल्स होते हैं, nomination of candidates, registers political parties, monitors the election campaign candidates. वेरी गुड. कौन दे रहा है ये जवाब? इवान. इवान आप दे रहे हो ना ये आंसर? यस. Yes, the Election Commission in India conduct, supervise and absorb the election. ठीक है? You are right. What are the type of democracy? What are the type of democracy? Yeah, what are the type of democratic government? Both are same question. Nidhi, give me answer. What are the type of democratic government? Jay. मैम direct democracy, representative democracy, constitutional democracy और एक है पता नहीं दूसरा. Democratic government. I think you tell me the types of democracy. Democracy are of two types. These are parliamentary and presidential. समझ में आया? समझाई थी ना पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. भूल गए या याद है? Tell me, you remember this or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आंसर दिया करो ना, फिर पढ़ने में ध्यान नहीं होता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which are the election conducted by the Election Commission? Which are the election conducted by the Election Commission? State legislature. हाँ. State legislatures and parliament. देखो इसका आंसर है राज्यसभा, लोकसभा. ये एक बच्चा अभी ऐड हुआ है, इसका नाम नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट है. हु इज ही शी? बेटा अपना नाम तो मेंशन करो, मैम को कैसे पता चलेगा कि आप हो? The Election Commission conduct election first to constitute parliament and the state legislature. पहला तो ये constitute parliament and the state legislature. Second is for the offices of the president and the vice president of India. चलो next question. At what age one gets the right to vote? 18. 18. Very good. Who gave this answer? किसने दिया ये आंसर? मैंने. इवान. जय, क्या बेटा आप सो गए हो क्या? Are you sleeping? Show me your picture. Where are you? Show me your picture.
अच्छा चलो, अब one thing more I want to ask question. This is a very interesting question. Who do not have the right to vote? Who do not have the right to vote? मैम Hmm? 17 ईयर हो वो, मतलब 18 ईयर से जो कम देखो, हो वो। इसका आंसर मुझे पता था, आप लोगों के पास से नहीं है। Persons who are below 18 years of age, mentally unsound. आपका जवाब सही था, बट इस तरीके से इस आंसर को हम राइट करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। Person who are below 18 year of age, mentally unsound, declared bankrupt, या मतलब एक तो mentally unsound होते हैं वो, एक declared bankrupt हो, एक debarred from criminal acts at the foreigners do not have the right to vote. इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। On which principle is the system of universal adult suffrage based? On which principle is the system of universal adult suffrage based? 1 person 1 vote. One person, one vote. Very good. Now next is, अच्छा चलो, for a general knowledge I am asking one question for you, only for GK, okay ना, general knowledge होनी चाहिए. What is mid-term election? Then that's conducted by election commission. What is mid-term election? Mid-term election क्या है ये पूछ रहे हो. What is mid-term election? तुम तो एक मुझे इसका मिनट। मीनिंग बता दो, मिड-टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? Mid means center. नहीं बेटा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है. मिड टर्म इलेक्शंस क्या होंगे? जो चीज मिड टर्म में हो रही है वो मिड टर्म ही तो कहलाएगी. पहला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? देखो, द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट of India or the dissolution of the Vidhan Sabha by the governor of the state president of India before the completion of the normal term of 5 year cause vacuum. A mid-term election is one conducted by the election commission to reconstitute the Lok Sabha and Vidhan Sabha. कई की बार क्या होता है, लोकसभा विधानसभा से पहले ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, या कोई इश्यूज आ जाता है, या कोई बहुमत साबित नहीं कर पाता, या ऐसा कोई भी इशू आता है तो खत्म हो जाती है. तो फिर उस वक्त क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है ये मिड टर्म में इलेक्शंस करवाता है. देखो आपकी बुक में होगा. देखो आपकी बुक में होगा. नहीं है मैम शायद. ये तो जनरल नॉलेज की चीजें, वैसे पता होना चाहिए आपको. क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होता है ना, कई बार कई बार क्या होता है कि जैसे जो हमारा गवर्नर होता है वो ये खत्म कर देता है, ठीक है ना. लोकसभा को इसको लिखा हुआ है ना, बाय द गवर्नर है ना, बाय द गवर्नर. विधानसभा बाय द गवर्नर है ना, हटा दी जाती गवर्नर द्वारा, है ना, या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कर दिया जाता है. तो जब ऐसी कभी कंडीशन हो जाती है तो फिर जब इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन. ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बोलो इन हिंदी बताऊं, पूरा हिंदी में बताऊं. क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा जैसे लोकसभा भंग कर दी, हटा दी, मतलब लोकसभा है ना, भंग कर दी हो, या 5 साल से पहले, 5 ईयर से पहले उसका जो जितना टेन्योर होता है वो पूरा होने से पहले उसको किस पावर से हटा दिया गया. लोकसभा में जैसे विधानसभा होती है, हमारी लोकसभा होती है ना, तो गवर्नर द्वारा उसको हटा दिया गया पहले. तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर दोबारा चुनाव होते हैं. तो जो दोबारा चुनाव होते हैं ना उसको बोलते हैं मिड टर्म चुनाव, बिकॉज वो मिड टर्म में होते हैं.
That's why we call midterm elections. Okay? Yes. समझ में आया Yes, क्या ma'am. होता है ये? जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज के व्हाट इज मिड टर्म, कि उससे पहले अगर कोई भी चीज हट जाएगी तो दैट्स कॉल्ड मिड टर्म. मिड टर्म में इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए 5 ईयर से पहले, बट क्या करें, लोकसभा मतलब वो जो लोकसभा है वो हटा दी या भंग कर दी राज्य उसने, हमारे गवर्नर ने, तो फिर होता है डिसॉल्यूशन कर दिया उसका. ठीक है? व्हाट इज अ बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? बी बाई इलेक्शन. व्हाट इज बाई इलेक्शन? मैम यही होता है, मिड टर्म इलेक्शन यही होता है इलेक्शन. नहीं, जब एन इलेक्शन कंडक्ट टू फिल अप द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. क्या मीन हुआ इसका, बताओ. क्या मैम वापस रीड करो ना. दोबारा बोलो. एन इलेक्शन कंडक्ट टू फिल अप द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मैम जब वैकेंसी हो जाती है उसके बाद भी जो इलेक्शंस होते हैं ना वो. हाँ, जैसे कोई इलेक्शन कैसे होते हैं कि मतलब किसी की डेथ हो गई, एक किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया चुनने के बाद, अब क्या हुआ, वो तो हट गया रिप्रेजेंटेटिव, तो दोबारा कैसे होगा, तो वो बाय इलेक्शन द्वारा होगा. ओके? नेम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट मोल्ड पब्लिक ओपिनियन. बताओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम. दे मोल्ड. बताइए. मोल्ड पब्लिक ओपिनियन. नेम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. टेल मी. टेलीविजन, या देन रेडियो, सिनेमा. yes, radio, television, films are the electronic media that mold public opinion. Now next is, which is the largest democracy in the world from the viewpoint of population? इंडिया. India is the largest democracy in the world from the viewpoint of population. Okay. Which country in the world has the largest number of voters? इंडिया. भाई जय, नील, निधि, ये सब कहाँ हो भाई? You all are present या only हर्षिका is present? Why you are not giving answer? क्यों आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग? पढ़ाया तो सबको इक्वल है ना? बेटा इतने इजी क्वेश्चंस है, इफ यू कम से कम आपको 1 तो आंसर देना ही चाहिए ना, ज्यादा मत दो, पर एक आधे का तो दो. अच्छा, टेल द सम नेम ऑफ नेशनल पार्टीज. निधि, ऋषिक, ये सूथर कौन है? महेंद्र जय सूथर. सुथार है वो. ये सब क्या, मेरे को तो लगता है क्लास ऑन करके सो जाते हैं. चलो बताओ. वेरी इजी क्वेश्चन. नेम द सम नेशनल पार्टीज. ये तो कोई भी बता सकता है. हर्षिका. भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर बीएसपी. अच्छा, और नेम द सम रीजनल पार्टीज. बीजेपी, टीएमसी हाँ, बीएमसी और शिवसेना. देखो, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, एसपी और शिवसेना.
शिवसेना, ये सारी क्या है, रीजनल पार्टीज हैं। Option शिवसेना ओनली एक्टिव इन महाराष्ट्र ना, नॉट इन द अदर स्टेट्स। regional. अदर स्टेट में कहाँ एक्टिव है शिवसेना? ओनली इन महाराष्ट्र। अच्छा, डीएमके कहाँ की पार्टी है? डीएमके क्या? डीएमके किस रीजन की पार्टी है? ये नहीं पता। तमिलनाडु। डीएमके इज बिलोंग टू तमिलनाडु। कहाँ की है? तमिलनाडु की। ओके, Tamil Nadu. क्लास Yes. ओवर होने का टाइम आ रहा है। ओके, आपको ये वाला Yes. चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। कल मैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करूंगी, लिसन टू मी केयरफुली। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, आप लोग राइट डाउन कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में, एसएस की क्लास में ये पूछूंगी। पब्लिक ओपिनियन, सीक्रेट बैलॉट, इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, बाय इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी। 8 पॉइंट है, मैं 8 पॉइंट पूछूंगी और सब बच्चों के नंबर आएंगे। ये आप, ये ऋषित, महेंद्र, निधि, नील, ये जो जवाब नहीं दे रहे हैं इन सबको जवाब देना होगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? Yes. यस नहीं, सिर्फ ढंग से बोलो, यस मैम से, Yeah. Ma'am. आराम से नहीं। अच्छा, Yes, वॉइस ma'am. अच्छा होना चाहिए। बोलो यस मैम, हम देंगे जवाब। Yes, ma'am. हाँ, Yes, वेरी sir. गुड। ठीक है, पढ़ के आना बेटा, एक एक बार देख लेना, आ जाएगा। मैंने समझाया है ना आपको, आपके माइंड में आ जाएगा। ओके ओके, नाउ बाय बाय।